Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel, and welcome you all to my another new blog of mine. And this blog will clear all your confusion. Actually, a lot of people still used to think that I'm working in sales department in Byju's, but this is not the truth. I'm not working in sales department. I'm working in academic department, and basically I'm working as an academic specialist. So from the last few months I was getting a lot of comments on the YouTube, on my Instagram DMs also, that what is your job profile, what do you do in the company, and a lot more. So I thought that I should make a complete video of this one, and of course along with that I would also like to help all those persons who just wanted to join Byju's as an academic specialist. So I thought that this video will clear all your queries related to academic specialist. तो बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीइंग एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एंड उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द ऑफिस टाइमिंग. देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट कि भाई यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है बेसिकली. एंड देन आफ्टर आई विल टॉक अबाउट द वर्क प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे, मैंने ही नहीं आप लोगों ने भी देखा होगा कि बायजूस की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं, एंड वहाँ बहुत निगेटिविटी फैला रखा है लोगों ने. तो ऑफकोर्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड माई पॉइंट ऑफ व्यू इन टू ऑल दोज थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट द CTC, जो आपको CTC यहाँ ऑफर होती है एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो शेयर माई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस टू यू ऑल, कि कैसा रहा था मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस. सो अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल yet, so please do hit the like button and subscribe my channel so that you will never forget any updates from my channel. So without further delay, let's get into the video. As I have already discussed, the job profile is of academic specialist. Now if you heard the word academic specialist, so you might be thinking that what type of work you are going to do in this. So basically academic specialist is a fancy name, but the thing which you have to do here is that you are working as an online tutor as well as offline tutor also. So these days there are a lot of classes which are in offline mode, so basically you have to be ready for the online classes also and offline classes also. So let me talk about the positions of academic specialist in Byju's. So basically there are two type of positions for academic specialist. One is for science teacher and the another is for math teacher. Either you will be a science faculty or you will be a maths faculty. But जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हो तो उस टाइम पे वहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम रहता है जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि यू वुड लव टू वर्क एज अ साइंस टीचर और यू वुड लव टू वर्क एज अ maths teacher. So if you are selecting math, then you will be whole and sole responsible for the all classes from class 4th to class 10th. I mean you have to take classes from class 4th to class 10th. लेकिन जैसे साइंस स्ट्रीम में सबको पता है कि साइंस का जो सिलेबस होता है वो हायर क्लासेस में थोड़ा सा वास्ट हो जाता है. तो बेसिकली द साइंस सब्जेक्ट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो जब आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहीं पे आपको ऑप्शन दिखता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है. मतलब आप वेदर यू जस्ट वांटेड टू बी अ फिजिक्स टीचर और यू वांटेड टू बी केमिस्ट्री ट्यूटर और यू वांटेड टू बी बायोलॉजी ट्यूटर. तो जब आप फॉर्म फिल करें तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई एम वर्किंग एज ए बायोलॉजी फैकल्टी ओवर हियर. तो 9th and 10th के जो बच्चे होते हैं, सो फॉर देम I am only biology faculty, but for class 4th to 8th I am science faculty. So our next topic will be कि content creation, right? So you don't have to worry about the content creation because there is a separate team for the content creation and they will prepare all the content. They will prepare the slide for you, they will prepare the tutor docs for you, and you will get all those slides, all those tutor docs before a day. Suppose tomorrow you have to take any classes, so by the end of today you will get all the tutor docs, all the slides over there. What you have to do, you have to prepare using those slides only, using that particular tutor doc only, and then in the next class you just have to deliver it in your own way. So this is what the function of an academic specialist is. One more thing, suppose if you have to take any classes by tomorrow, so you will get a pre-informed mail also that tomorrow this class is scheduled at this time. So you don't have to think about the timing also, like you will get a proper mail along with the subject and the timing, and of course the tutor doc and the slides are already available on to
your portal. So you just have to go through that, just prepare it in your own style. So the main point is that if you want to work as an academic specialist, so basically आपकी जो presentation skill होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए. Alright, so now let me talk about the most exciting part and that is of course the CTC and salary. Of course, तो यार देखो ऐसा है यार कि आपकी कितनी सैलरी होगी ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये है कि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्रॉम विच कॉलेज यू हैव डन योर स्टडीज़. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स सपोज बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि जिनकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने खुद से अप्लाई कर रखा होता है, मतलब ऑफ कैंपस वाले. तो अब यहाँ पे भी क्या होता है ना कि अलग अलग तरीके से CTC डिसाइड होती है. अब CTC डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन एक अगर एवरेज रेंज में लेके चल रही हूँ तो मान के चलिए कि योर CTC विल बी अराउंड 5 to 10 LPA. राइट, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज योर CTC इज 6 LPA. तो what we do generally, what we do, in fact when I was also applying for this post, so what I did, I just divided 6 LPA by 12 months and it got 50K. So I thought that we would get 50K in hand, but no, this is not the reality. Like though it will be 50K, but at the end, like if you receive the amount in cash, so there will be some amount deducted from that, and basically those will be tax, and there are a lot of deductions. Even I don't remember the name, but there are a lot of deduction, and of course the amount which you get will be the reduced one. And one more thing, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरी जो सिलेक्शन हुई थी वो कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था नेगोशिएट करने का. बट सम पर्सन टोल्ड मी दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू, जब आपकी HR से बात हो रही होती है, तो एट दैट टाइम यू कैन नेगोशिएट अबाउट द CTC. I don't know, but yeah, I have heard from somewhere, so that's why I'm informing you. So maybe अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो you can negotiate about it. अगर मैं सैलरी की बात करूं तो होता ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सैलरी फिक्स्ड अमाउंट होती है, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होती हैं जिनकी जो सैलरी होती है वो वेरिएबल अमाउंट होती है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वेरिएबल अमाउंट तो है ही, साथ साथ कुछ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं. तो लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स कि अगर आपकी फिक्स्ड CTC है, जैसे कि मेरी अगर फिक्स CTC है तो मुझे इंसेंटिव्स नहीं मिलते, मुझे कोई वेरिएबल पे नहीं होता. लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस वाले हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो CTC होगी वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट होगा और कुछ वेरिएबल अमाउंट होगा. तो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 6 मंथ, मतलब जब आपकी वर्किंग 6 मंथ कंप्लीट हो जाती है तो कुछ वेरिएबल अमाउंट मिलता है, फिर कुछ वेरिएबल अमाउंट आपको जब 1 ईयर आपका वर्किंग कंप्लीट हो जाता है तो मिलता है. तो कुछ इस तरीके से आपको अमाउंट मिलते हैं. तो यू डोंट हैव टू थिंक कि आपने आज बायजूस ज्वाइन करा एंड विद इन 1 मंथ आपको पूरे वेरिएबल अमाउंट मिल जाते हैं. तो ऐसा नहीं होता है. वेरिएबल अमाउंट के लिए यू हैव टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ एंड देन 1 ईयर. सो द नेक्स्ट पार्ट विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ ट्रेनिंग. चलो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है ट्रेनिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर गई थी. तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी एकेडमिक स्पेशलिस्ट की वो बैंगलोर में हुई थी. तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. बट फिलहाल देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो बेसिकली 3 दिनों की हुई थी. तो आई डोंट कंसिडर दैट ट्रेनिंग. उसमें बेसिकली मतलब ऐसा था ना कि बताया गया था कि आपको कैसे वर्क करना होता है यहाँ पे. लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे ना बहुत हेक्टिक लगा था. लाइक व्हेन आई वाज इन बैंगलोर एंड आई गॉट टू नो अबाउट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए काफ़ी नई थी, बिकॉज जैसे द फर्स्ट जॉब, तो ऑफकोर्स थोड़ी सी जो चीज़ें मुझे बताई जा रही थी वो मुझे बहुत हेक्टिक लग रही थी. बट हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ भी हो, बट लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू कि होता है ऐसा कि धीरे धीरे जब आप उन चीज़ों को करने लगते हो ना, व्हेन वंस यू बिकम हैबिचुअल ऑफ ऑल दोज थिंग्स, तो फिर चीज़ें आपको हेक्टिक नहीं लगती. इनफैक्ट यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग थिंग्स. सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें वहाँ बताई गई थी, जो कि मुझे बाद में फील हुआ कि दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वाज दैट कि यू शुड हैव पेशेंस. जस्ट हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू जस्ट हैव टू कंट्रोल द एंगर, बिकॉज it's a class, of course. So in class there are a lot of students are there, so it may be that sometimes a particular student asks you a ridiculous question which you don't want to answer. So at that time you just have to behave normal, you just have to control your anger and just handle the situation.
हाँ, इनफैक्ट सेंटर पे आने के बाद हमारी मेन ट्रेनिंग हुई थी। तो बेसिकली ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसको प्रोबेशन पीरियड कहना ज़्यादा सही होगा, नॉट ट्रेनिंग, दैट वाज अ प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड वाज ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ, 1 मंथ तक हमारी प्रोबेशन पीरियड चली थी, जिसमें बेसिकली मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो थोड़ी सी टफ हुई थी। यू नो व्हाट हैपेंड इन प्रोबेशन पीरियड की आपको ना कंटेंट खुद से प्रिपेयर करना होता था उस टाइम। आई हैड टू प्रिपेयर द कंटेंट एंड बीइंग अ बायोलॉजी फैकल्टी, मैं बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ, बट एट दैट टाइम आई हैड टू प्रिपेयर कंटेंट फॉर द फिजिक्स ऑल्सो, फॉर द केमिस्ट्री ऑल्सो, एंड देन आई हैव टू प्रेजेंट। एंड मतलब आप सोच सकते हो, मतलब एक जूम मीटिंग होती थी और उसमें 5 to 6 न्यूली हायर्ड जो कैंडिडेट्स थे मेरी तरह वो लोग रहते थे और एक हमारे साथ सीनियर फैकल्टी रहते थे। तो लाइक उसमें बस ये नहीं होता था कि आपको प्रेजेंट करना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। आपने एक बार एक्सप्लेन करा ना, वो मतलब जो टीचर्स प्रेजेंट रहते थे वहाँ पे वो उससे क्वेश्चन पूछते थे और वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लाके पूछते थे। तो दैट वाज अ बिट टफ फॉर मी। तो हमारी जो प्रोबेशन थी वो 1 महीने तक चली थी एंड आफ्टर 1 मंथ लाइक वी स्टार्टेड वर्किंग। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफिस की टाइमिंग क्या होती है। तो इफ़ यू आर वर्किंग एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट तो आपकी ऑफिस की टाइमिंग होगी 12 PM से लेके 9 PM। इट मे बी कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह जल्दी उठना पसंद करते होंगे या फिर रात में जल्दी सोना पसंद करते हैं। तो इन द बिगनिंग हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वंस यू गेट हैबिचुअल ऑफ इट। मान के चलिए कि 9 आवर की आपकी वर्किंग आवर होनी चाहिए एंड उसमें से फ्रॉम 4 PM to 9 PM आपकी क्लासेस रहती हैं। और आप अब सोच रहे होंगे कि 12 से लेके 4 तक करते क्या हो। तो 12 से 4 में ऐसा नहीं है कि फ्री रहते हो। एट दैट टाइम यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फर्दर क्लासेस। मतलब जो आपकी इवनिंग में क्लासेस होने वाली होती है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे डाउट सेशन लगे हुए होते हैं, सो यू हैव टू टेक डाउट सेशन ऑल्सो इन दैट टाइम फ्रॉम 12 to 4। तो मतलब बिजी रहता है, शेड्यूल बिजी रहता है, you will not be free, right? Next thing which I would like to discuss with you all is the work environment. तो you know there are a lot of people who used to think कि बायजूस का वर्क इन्वायरमेंट बहुत ही निगेटिव है, बट सीरियसली मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अब इट मे बी कि द प्लेस वर आई एम वर्किंग राइट नाउ की माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, बट हाँ मुझे कभी वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मेरी वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट यहाँ का वर्क इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है एंड चाहे वो मेरे ACH हो या फिर ZH हो या फिर मेरे ABH हो, इनफैक्ट जितने भी फैकल्टीज़ यहाँ पे हैं दे ऑल आर हेल्पफुल इन नेचर। तो मुझे कभी तो ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। माई नेक्स्ट टॉपिक विल बी वर्क प्रेशर। तो यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्रेशर तो रहता है, नो डाउट रहता है, बट हाँ if I compare about the work pressure of those persons who are working in sales department and those persons who are working in academics department, तो of course यार sales department वालों में ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, नो डाउट। बट वहीं अगर मैं बात करूँ academics की, तो academics में उतना वर्क प्रेशर नहीं होता है। लाइक एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आपको देना चाहूँगी हाउ टू डील विद द वर्क प्रेशर, कि आपको पता होता है कि आपको कल क्या करना है। सो जस्ट मेक अ शेड्यूल ऑफ दैट कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, एंड जब आप ऑफिस में एंटर करते हो उसके साथ ही अपने जो भी वर्क आपको करने हैं वो करना स्टार्ट कर दो। तो वर्क प्रेशर इज नॉट दैट मच है। अब ऑफिस है, लाइक यू आर डूइंग जॉब, सो ऑफकोर्स यू कंपनी हैज गिवन यू अ पर्टिकुलर पोजीशन, सो फॉर दैट पोजीशन यू हैव टू वर्क, राइट। सो अगर आप में से भी कोई एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट बायजूस में अप्लाई करना चाहता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखा है अपने चैनल पे, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे हैं कि कैसे बायजूस का जो इंटरव्यू होता है वो आप क्रैक कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरी जो प्लेसमेंट थी वो कैंपस प्लेसमेंट थी, तो मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे हैं, तो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। यूट्यूब पे मेरी जो वीडियोस हैं बायजूस वाली, तो मुझे उसमें एक कमेंट आया था कि कैन आई अप्लाई फॉर बायजूस एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट इफ़ आई डोंट हैव लैपटॉप। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट, तो आपको एसेट जो होते हैं वो कंपनी की तरफ से ही मिलते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो वैसे तो मेरे पास लैपटॉप पहले से भी था, लेकिन स्टिल व्हेन आई जॉइन द कंपनी आई गॉट द लैपटॉप फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। कुछ जो एसेट्स थे वो मुझे बैंगलोर में मिले थे एंड कुछ जो एसेट्स थे वो यहाँ पर मेरा सेंटर है वहाँ पे आके मिले थे। तो सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट।
इसके साथ ही एक और मुझे जो क्वेरी, बहुत ही कॉमन क्वेरी है जो मुझे हमेशा यूट्यूब पे आते रहता है, वो ये है कि अगर ट्रेनिंग के लिए हम लोग बैंगलोर जाते हैं तो एकोमोडेशंस का क्या सीन है। तो देखिए, एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो बैंगलोर में हुई थी, एंड बैंगलोर में मेरी जो एकोमोडेशन थी वो कंपनी की तरफ से थी। तो ऑफकोर्स आई गॉट द एकोमोडेशन इन बैंगलोर। इनफैक्ट आपकी जो फूडिंग होती है ना, तो फूडिंग के भी पैसे आपको वापस रिम्बर्स कर दिए जाते हैं, बशर्ते कि आपके पास जो बिलिंग है वो प्रॉपर रहे। तो अगर आपकी भी ट्रेनिंग होने वाली है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने पास जो बिल है वो रखें, क्योंकि बिल के बिना रिइम्बर्समेंट नहीं होती है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या होता है कि वो जो बिल होता है उसको आपको ईमेल करना होता है, एंड फिर ईमेल के थ्रू आपको रिइम्बर्स होके अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपकी क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो एचआर जो होते हैं वो जनरली आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं रीलोकेशन के लिए। तो आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन रीलोकेशन, सो आप यस बोलिएगा, क्योंकि अगर आप नो बोलते हैं रीलोकेशन के लिए तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपको हायर नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो द कंपनी इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ सच कैंडिडेट हु इज़ फ्लैक्सिबल इन रीलोकेशन, राइट। बट इन जनरल होता क्या है वो मैं बताती हूँ। आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस मेंशन होगा, सपोज में अगर आपके आधार कार्ड पे मेंशन है दैट यू आर फ्रॉम उड़ीसा, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी ना वो मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा के ही किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में होनी है। रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि आप हो उड़ीसा के लेकिन यू आर वर्किंग इन झारखंड, रेयर केसेस होते हैं। ऐसा तभी होता है जब आपके पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी जोन में आप जिस भी सब्जेक्ट के एकेडमिक स्पेशलिस्ट हैं उसकी कोई पोजीशन नहीं खाली है। तो चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कि ट्रांसफ़र का क्या सीन होता है मेरे से। अगर सपोज आप हैं झारखंड के लेकिन आपकी पोस्टिंग बिहार में हो चुकी है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको कुछ टाइम के लिए बिहार में वर्क करना होगा। बिहार के जिस भी सेंटर पे आपकी पोस्टिंग हुई है कुछ टाइम के लिए आपको वर्क करना होगा। एंड मार्च में अभी रिसेंटली एक फॉर्म आया था दैट इज़ ऑफ ट्रांसफ़र फॉर्म। तो ट्रांसफ़र फॉर्म में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जहाँ भी होम टाउन है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया होती है कि सपोज आप वो मैथ्स के फैकल्टी हैं, आपको जाना है झारखंड, ठीक है। तो आपने झारखंड में कॉन्टैक्ट से, अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू पता कर लिया है कि हाँ वहाँ पे एक फैकल्टी है जिनको आना है इधर, तो आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा अपने लेवल से भी वर्क करना होता है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र। आपको खुद से कॉन्टैक्ट करना होगा पर्टिकुलर पर्सन से, एंड यू कैन टॉक विद ईच अदर। और अगर आपकी आपस में सहमति हो गई कि हाँ उनको यहाँ आना है, आपको वहाँ जाना है, तो फिर आप लोग आपस में बात करके देन इन्फॉर्म योर एचआर, एंड एचआर विल कंप्लीट द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र, और कुछ इस तरीके से आपकी ट्रांसफ़र हो जाए। नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि भाई ये जो प्रोफाइल है दैट इज़ एकेडमिक स्पेशलिस्ट, वो वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस काम करती हूँ। तो बेसिकली एकेडमिक स्पेशलिस्ट जो प्रोफाइल होती है वो ऑनलाइन, मैंने पहले ही बताया कि यू आर गोइंग टू वर्क एज एन ऑनलाइन ट्यूटर एज वेल एज ऑफलाइन ट्यूटर, तो आपको ऑफिस आके वर्क करना होगा। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि इफ़ दे आर अंडर ट्रेनिंग और इफ़ दे आर अंडर प्रोबेशन पीरियड तो उनको सैलरी मिलेगी कि नहीं। तो देखिए ऐसा है कि ऑफकोर्स चाहे वो प्रोबेशन पीरियड हो चाहे वो ट्रेनिंग पीरियड हो, यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी, एंड इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी देन ऑफकोर्स द कंपनी इज़ गोइंग टू पे, राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ तो मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं। ऑफकोर्स यू विल गेट द सैलरी। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आपको एकेडमिक स्पेशलिस्ट से रिलेटेड जो भी आपके इफ़ बट और जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने कर दिया है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू बायजूस, नॉट ओनली एकेडमिक स्पेशलिस्ट, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू बायजूस, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा। एंड इसके अलावा आपके पास कोई भी सजेशंस होंगे या फिर आप कोई टॉपिक वीडियो चाहते हैं, देन प्लीज़ डू let me know in the comment section. I would definitely try to answer all your queries over there, and of course suggestions are always welcome. तो अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।